اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے، جن میں صرف 25 کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، حرام کاموں سے خود کو بچاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ہم نے ہر قوم اور قبیلے کے اندر اسی قوم سے تعلق رکھنے والے پیغمبر کو ان انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں اپنا سمجھ کر اللہ کے پیغام کو اپنائیں۔ اکثر غیر مسلم یہی سوال کرتے ہیں کہ جب انسان پوری دنیا کے اندر موجود تھے تو اللہ کے پیغمبر اور رسول صرف عرب ممالک کے اندر ہی کیوں بھیجے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور قبیلے کے اندر جہاں پر آبادی تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبر موجود تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس قوم نے اس پیغمبر کا انکار کیا اور کفر کی موت کے اندر ہی مر گئے یا عذاب کا شکار ہوئے۔ رسول اللہ کے پیغمبر ہی ہوا کرتے تھے، مگر اللہ کی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ دنیا میں آتے تھے، اور ان کے آنے کے بعد پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر تورات، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان کے بعد اگلے آنے والے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نازل ہونے کے بعد یہ منسوخ کر دی گئی، کیونکہ اب اللہ کا نیا قانون انجیل مقدس تھا جسے یہودی قوم نے اپنایا۔ اسی طرح رسول اللہ پر قرآن پاک نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام شریعت کو یعنی انجیل مقدس کو اور تورات کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا قانون اور شریعت بس قرآن پاک ہی ہے۔ رسولوں کا انکار کرنے پر اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف موجودہ شریعت کو آگے پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اسی کتاب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ قدیم حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین انسانی تہذیبیں آج کے موجودہ دور کے عراق کے اندر یا سمیرین سیولائزیشن تھی، جو کہ 4005 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 4,500 سال پہلے۔ اس کے علاوہ مصر کی 3,100 سال قبل مسیح۔ اس کے علاوہ وادی سندھ کی تہذیب، جو کہ 1300 سے 3300 قبل مسیح پہلے کی تھی۔ مزید چائنا اور یونانی تہذیب ہزاروں سال سے یہاں پر موجود تھی، اور تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے جن علاقوں کے اندر جہاں پر آبادی موجود تھی ہر ایک جگہ پر پیغمبروں کو بھیجا گیا، جبکہ آج کے دور کے موجودہ یورپ اور ویسٹرن تہذیبیں اس وقت موجود ہی نہیں تھی، یعنی وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ جہاں پر انسانی آبادی موجود نہیں تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبروں کو بھیج کر دعوت کرنے کا مقصد لاجیکل سی بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اپنے مشہور ترین پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کن کن حصوں کے اندر بھیجا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ سری لنکا ملک کے اندر ایک پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں، جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا کے پہلے انسان، پہلے مسلمان، پہلے پیغمبر اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جنت سے اتارا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر بعد میں وہ مصر کی جانب اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کر گئے اور یہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیش علیہ السلام کے بعد انسانوں کے تیسرے پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر انسانوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے جن پر کئی صحیفے نازل ہوئے۔ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت کی تبلیغ ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچی تھی، جس کا ثبوت ہندوؤں کی ویداس کے اندر موجود تمام وہ واقعات ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر بالکل اسی طرح سے موجود ہے۔ مثال کے طور پر طوفان نوح کی پیشن گوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اما حوا علیہ السلام کی تخلیق، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی آج کی ہندو قوم کی طرح پتھروں کے خدا بنا کر ان کی پوجا کیا کرتی تھی، اور یہ پتھر اصل میں
उन नेक लोगों की तस्वीर थी जो कि उस कौम के दरमियान रहकर उन्हें तबलीग दिया करते थे, मगर उनकी वफात के बाद उन लोगों ने उनकी शक्लों को पत्थरों पर तराश कर उनकी इबादत शुरू कर दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के यमन मुल्क के अंदर कौम आद की हिदायत के लिए भेजा गया था। यमन और ओमान के दरमियानी इलाके अहकाफ नामी सरजमीन पर ये लोग रहा करते थे और वहां पर मौजूद कुदरती नेमतों यानी फसलों, बागात, पानी वगैरह की वजह से ये कौम इंतहाई खुशहाल और आरामदेह जिंदगी गुजारती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तौहीद को छोड़कर बुत परस्त बन गए और लोगों पर जुल्म करने लग गए। और कुरान के मुताबिक तब अल्लाह फरमाता है, हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, मेरी कौम खुदा की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम लोग शिर्क करके खुदा पर इल्जाम लगाते हो। बदले में ये कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम को तकालीफ पहुंचाती रही। फिर एक दिन अल्लाह के अजाब का वादा पूरा हुआ और आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगी जिनकी रफ्तार इतनी थी कि घोड़ों, माल मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह पर उठा उठा कर दे मारती। मुसलसल 7 दिन और रातों तक तेज हवाएं चलती रहीं और इसी दौरान रेत का तूफान उठा और तमाम मकान और इंसानों पर आकर गिरा और ये सब लोग मारे गए। इस वाक़ये के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम सरजमीन मिस्र हिजर मौत की तरफ चले गए। हिजर मौत यमन की एक सरजमीन का नाम है, जैसे कि आप मैप पर देख सकते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। आपका वतन भी इराक था, मगर तबलीग के लिए आज के मौजूदा दौर के सऊदी अरब यानी मदीने के शुमाल के अंदर आपको भेजा गया, जहां पर कौम समूद की आबादी मौजूद थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हैं और आपका सिलसिला नसब कुछ यूं है, सालेह बिन अबीर बिन सयाफ बिन माशिह बिन उबैद बिन खाजिर बिन समूद बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आज से कम 4000 साल पहले हज्जाज मुक़द्दस और तबूक के दरमियान हिजर नामी जगह के अंदर एक कौम आबाद थी जिसको कहा करते थे कौम समूद। ये जगह आजकल मदाइने सालेह के नाम से मशहूर है और ये एक पहाड़ी इलाका है। और इस कौम ने तरक्की करने के बाद इतनी तरक्की कर ली थी कि ये पहाड़ों को तराश कर अपने बड़े बड़े घरों को तामीर करते, जैसे कि आप वीडियो के अंदर इन खंडरात को देख सकते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन इनसे कभी भी जीत नहीं पाते थे। और ये लोग बहुत ही लंबे, ताकतवर और मगरूर थे, न कभी बीमार होते और इनकी उम्रें बहुत ही लंबी हुआ करती थी। कौम समूद की बस्तियों के खंडरात और उनके आसार आज भी मौजूद हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ही नाफरमान थी। जब उनको एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह वजूद रखता है तो हमें फुला फुला की तरह की एक ऊँटनी दिखाए। मौजज़ा ये हुआ कि अल्लाह ने वो ऊँटनी नाजिल कर दी, मगर उन लोगों ने उस मौजज़े की नाकदरी की जो कि उनकी शराइत पर पूरी उतरती थी और उस ऊँटनी को उसके बच्चे समेत कत्ल कर डाला। फिर अल्लाह ने उस नाफरमानी की वजह से उस पूरी कौम पर अजाब नाजिल किया और ये सफाई हस्ती से मिट गई और ये पूरी कौम आपके मानने वालों के अलावा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और आज इराक के शहर नजफ के अंदर वादी सलाम नामी कब्रिस्तान के अंदर आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इराक के अंदर मबूस फरमाया गया, जहां पर नमरूद ने खुदाई का दावा किया और आपको आग के अंदर गिराने का वाकया पेश आया। आपको इराक की सरजमीन पर उन लोगों की तबलीग के लिए भेजा गया था, क्योंकि कुरान के अंदर ये वाकया भी मशहूर है कि जब सब लोग एक मेले के अंदर गए हुए थे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम छोटे बुतों को तोड़कर एक बड़े बुत के कांधे पर कुल्हाड़े को रख दिया और कहने लगे, इस बुत ने तुम्हारे तमाम बुतों को तोड़ा है। तमाम लोग कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो एक पत्थर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को कहा कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हारा खुदा इन पत्थरों के बुत की तरह नहीं है जिन्हें तुम अपने हाथों से तराशते हो, बल्कि खुदा की जात तो बहुत बड़ी है। सिर्फ उसी की इबादत किया करो, उसका कोई शरीक नहीं और वही सबसे ताकतवर है। जिसके बाद नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक जलती हुई आग में डालने का हुक्म दिया, मगर वो आग अल्लाह के हुक्म से एक बाग में बदलकर आपको बचा लेती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम।
इसके अलावा हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी मौजूदा दौर के इराक के अंदर भेजा गया, जहां पर उनकी कौम हम जिन्स परस्ती के अंदर मुब्तला होकर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हुई तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। इसके अलावा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा इराक के अंदर भेजा गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के यमन के अंदर भेजा गया, क्योंकि आपके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको और आपकी वालिदा माजिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर मक्के में छोड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस चले गए, जहां से इस्माईल अलैहिस्सलाम ने यमन में मौजूद अमालिका कौम की तरफ इस्लाम की तबलीग शुरू की और 50 साल तक उनके साथ रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूदा दौर के फलस्तीन के अंदर ही पैदा हुए। बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में हिदायत के लिए भेजा गया तो ये तमाम खानदान वहीं पर शिफ्ट हो गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल वहीं पर हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र भी मिस्र के अंदर ही मौजूद थी, जो कि बनी इसराइल की हिजरत के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत पर निकलवाकर अपने पास फलस्तीन में रख ली, जबकि दरियाए नील पर उन्हें मदफून किया गया था। यहीं पर मिस्र में ही मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जो कि बनी इसराइल के लिए निजात का जरिया बने, जिसे उस वक्त के फिरौन ने गुलाम बनाकर रखा था। और ये अपनी तमाम कौम को लेकर फलस्तीन की जानिब रवाना हुए और उन सब को देखकर एक बार फिर अल्लाह के हुक्म से अपनी आबाई सरजमीन पर आबाद किया और उन सब को एक बार फिर अल्लाह के हुक्म से अपनी आबाई सरजमीन पर आबाद किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर थे, उन्हें भी मदाइन कबीले की तरफ भेजा गया और ये कबीला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मदाइन की नस्ल से था, जो कि उनकी तीसरी बीवी कतूरा से पैदा हुए थे। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये खानदान बनी कतूरा भी कहलाता है। ये बनी कतूरा का खानदान अपने सौतेले भाई हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पहलू में हज्जाज में आकर आबाद हो गया था और यही खानदान आगे चलकर एक बहुत बड़ा कबीला बन गया। शुएब अलैहिस्सलाम भी चूंकि इसी नस्ल और इसी कबीले से थे, इसलिए उनकी तबलीग के लिए उनको चुना गया और ये इस कौम के लिए पैगंबर थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन के अंदर या अपनी आबाई जमीन के अंदर फिर से आबाद हुए तो अल्लाह ने उस कौम के अंदर एक के बाद एक बेशुमार पैगंबर और रसूल भेजे, जिनके अंदर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम और ऐसे बेतहाशा पैगंबरों के अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी रसूल बनाकर भेजा, जिसका उस कौम ने इनकार कर दिया। और इसके बाद सबसे आखिर में नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के शहर के अंदर आखिरकार नबूवत देकर आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजा। वैसे तो आपको नबूवत मक्के में मिली, मगर आपकी जिंदगी के पूरे 10 साल मदीना शहर के अंदर गुजरे और आपकी वफात के बाद भी आज आपकी कब्र मुबारक सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।